आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सेकेंड में एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को डिराक इक्वेशन फॉर फ्री स्पिन हाफ पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। Dirac relativistic equation for free spin-half particle. Dirac in 1928 formulated an equation which circumvented the difficulties of negative probability density. He approached the problem by developing a relativistic wave equation which, instead of being quadratic, was linear and first order in time derivative. For in the theory of relativity, there is complete symmetry between the space x, y, z and time ct. It also restricts the spatial derivative in the wave equation also to the first order. Dirac modified Hamiltonian in such a way that Dirac wave equation psi satisfied a first order linear differential equation in all the four coordinates. It described the particles with spin half and provided in all the four coordinates. It describes the particle with spin half and provides very good physical interpretation of negative energy solution of this equation. ठीक है, what is the Dirac equation? Development of Dirac equation. The Hamiltonian for the free particle is h बराबर अंडर रूट प्लस माइनस सी h बराबर प्लस माइनस सी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। h बराबर प्लस माइनस सी h क्रॉस स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर टोटल की पावर हाफ. It is equation number 14. This when substitute in time dependent Schrodinger equation, which is I h cross del psi by del t, where psi is a function of r and t, is s psi t. The resulting equation is s unsymmetric in space and time derivative and is not relativistically proper. The simple Hamiltonian that is linear in momentum and mass term is h बराबर c alpha dot p plus beta mc square. h बराबर c alpha dot p is alpha x px plus alpha y py plus alpha y pz and plus mc square. This is equation number 42, where the coefficient alpha x, alpha y, alpha z and beta are yet to be determined. The relativistic Hamiltonian must necessarily include the rest mass mc square, and since energy is on the same footing as Cp in relativity theory, the h is taken linear in mc square also. Substituting equation 42 into equation 41, we get equation 42 देखिए और इसे equation 41 में substitute कर दीजिए. तो आपके पास जो रिलेशन है वो बन रहा है e माइनस सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर एंड साई इज 0. Equation 43. If this equation is to describe a free particle, alpha and beta must be independent of r, t, p and e. Now psi of this equation must also be solution of relativistic equation minus h square del square psi by del t square बराबर minus h square c square del square plus m square c4 and psi. Because in the absence of external field, the wave packet solution of equation 43, whose motions resemble those of classical particle, must have the classical relation between the energy, momentum and mass, which is E square बराबर P square C square M square C4. We therefore multiply equation 43 on the left hand side by E plus C alpha dot p plus beta mc square to obtain. ठीक है, इक्वेशन 43 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये आपके पास इक्वेशन 43 है, इसे हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. देयरफॉर ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस अल्फा जेड स्क्वायर पी जेड स्क्वायर
plus alpha x alpha y plus alpha y alpha x multiply by px py, alpha y alpha z plus alpha z alpha y, this bracket multiply by py pz, and bracket alpha z alpha x plus alpha z, this bracket multiply by px एक्स वाई आ गया, वाई जेड आ गया, देन जेड एक्स माइनस एम स्क्वायर सी फोर बीटा स्क्वायर, देन माइनस एम सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स प्लस अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फा वाई, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय पी वाई, अल्फा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फा जेड, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय पी जेड, एंड साई इज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर आपको अल्फ़ा डॉट पी एक्स के स्थान पर अल्फ़ा एक्स पी एक्स लिखना है। सिमिलरली दूसरी जो इसकी इक्वेशन 45 की जो राइट हैंड साइड आ रही है वहाँ पर भी आपको सेकंड टर्म में भी ये लिखना है, एंड देन आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 45 से आप 46 इक्वेशन पर इजीली पहुँच सकते हैं। आइए 46 इक्वेशन के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। कंपेयरिंग दिस विथ के जी इक्वेशन, इसको के जी इक्वेशन जो कि आपके पास यहाँ लिखी हुई है, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी फोर साई इज ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 47, वी फाइंड दिस रिलेशन 46 एग्रीज विथ 47। कब एग्री होगा ये 47 और 46 इक्वेशन? जब अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा वाई स्क्वायर अल्फ़ा जेड स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 के बराबर होगा, और अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड इज़ ज़ीरो। ये जो टर्म्स आ रही है मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ उनके कोफिशिएंट्स जीरो होंगे। इट मीन्स और अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई एंड अल्फ़ा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा जेड को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। ये तीन अगर चीज़ें ये 1 के बराबर है, स्क्वायर्स ये टर्म 0 के बराबर है, देन बीटा के साथ अल्फ़ा की मल्टीप्लिकेशन टर्म भी 0 के बराबर है, तो इक्वेशन 47 में कन्वर्ट हो जाएगी। डेट इज़ द 4 क्वांटिटीज़ एंटी कम्यूट इन पेयर एंड दीज स्क्वायर्स आर यूनिटी सिंस अल्फ़ा एंड बीटा एंटी कम्यूट रेदर देन कम्यूट विथ ईच अदर, दे आर एक्सप्रेसिबल बाय मैट्रिसेस। ओके, कल हम मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अल्फ़ा और बीटा के लिए मैट्रिसेस क्या होंगी, उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, उनसे रिलेटेड चर्चा कल की जाएगी। धन्यवाद।